everybody, welcome back and thank you so much for joining me. Uh, this guidance is going to be about fudge, as you know already. I just got this request today and I was feeling very drawn to do this reading. In fact, I have not done any reading on his lovely pet fudge. Oftentimes I thought about it, but it somehow slipped from my mind. But today when I saw the request, I felt that yes, I should do it and I want to do it. I'm feeling very drawn, so hopefully we will get a lot of divine insights into fudge, our lovely fudge. Importantly, because I always feel, and I think we all agree to this, that animal love is as selfless as your mother's love, right? So let's dig into it and see what guidance we are getting for fudge. How is Sushant feeling about the fudge? About fudge? How is fudge feeling about Sushant? And let's get deep into it. So if you see, I have two more deck other than the usual deck that I use. I use these Surrender Fear and this tarot deck, but I'm also using my Sacred Travelers deck here, which I feel that will beautifully emote the guidance or the feelings that Sushant might have for or will have for fudge from this beautiful deck. The energy is absolutely gorgeous and warm, and I'm sure Sushant will have some blessings for his lovely pet, which will come from this beautiful Keepers of the Light deck. And yes, I do feel that there will be something that he will want fudge to release, okay, because he has crossed the realms. Any kind of attachment which is causing pain to his lovely pet, I'm sure he will want fudge to release that, okay. So we will see this from here. So really feeling drawn to do this reading, so let's do this. And even before we get into this, I'm using my new mic, so I'm hoping that the quality of this video, the sound is clear and lot better. Hopefully it is me minimizing all the distractions and the background noise. That is what I'm hoping. Please do let me know if the sound is better, clear, or anything you want to share on this, okay? So, and thank you so much for putting up with the sound low volume so far. Thank you so much. I really appreciate your love and support. Thank you so much. All right, let's dig into it and see what guidance we are going to get from this reading, okay? तो मैंने पूछा है कि हाउ इज सुशांत फीलिंग अबाउट फज. तो यहाँ पे देखिए 4 of Wands उल्टा आया है, which is like he telling that everything is fine where in his spiritual realm में जहाँ पे है वो, वहाँ पे वो बेसिकली खुश है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उनके फज के बिना अधूरा सा लगता है सेलिब्रेशंस, राइट. यानी कि एवरीथिंग इज़ फाइन वेयर ही इज़. जैसा कि आपको काफ़ी टैरो रीडर्स ने भी बोला होगा कि जहाँ पे वो है काफ़ी पीसफुल है, अपनी माँ के साथ है, ये सारी चीज़ें बोली होंगी आपको. तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि वो जहाँ पे भी है एक काफ़ी सुकून है, एक पॉजिटिव वाइब्स है, सेलिब्रेशंस है, हर चीज़ है, लेकिन फज के बिना कुछ सेलिब्रेशंस में अधूरापन लगता है, ओके. मैंने ये पूछा है कि व्हाट ही फील्स अबाउट फज. तो फज के बिना कुछ मिसिंग है लाइफ में, सेलिब्रेशंस में मिसिंग है. एंजेलिक रेल्म में हर चीज़ है, एक सुकून है, एक पीस है, एक पॉजिटिविटी है. शायद उनकी मम्मी भी उनके साथ है, लेकिन फज के बिना सारा जश्न है, सेलिब्रेशंस है, एक अधूरा सा लगता है. काफ़ी अटैच थे शायद फज से वो, डेफिनेटली. उनको ये भी लगता है कि फज अब वो काफ़ी फज को अफसोस, फज काफ़ी एक शॉक में था उनके जाने के बाद, लेकिन अब वो वापस आ रहा है शॉक से बाहर निकल रहा है फज. अब 4 महीने हो चुके हैं और धीरे धीरे फज अभी
बाहर निकल रहा है, जो उनको शॉक, जो फज को शॉक हुआ ना उनके जाने से, अब फज उससे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देख के ऐसे भी लगता है कि जैसे फज के साथ उन लोगों ने कुछ किया है। ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि देयर इज, जो भी कुछ किया है या तो फज को पता है या फिर फज को भी उसने उन लोगों ने या तो कुछ दवा देके सुलाया होगा या कुछ किया होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे एंगल है कि उन्होंने कुछ स्नीकी काम किया है फज के साथ, और फज को उन लोगों ने कुछ किया है, ये वाला बात पता चलता है यहाँ पे। अभी लगता है फज अपने उनके पापा के साथ है, और यही पता चल रहा है। चलिए, वी विल आस्क मोर व्हाट हाउ ही फील्स अबाउट फज। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। Okay. Go slow, take time. Exactly, सेम चीज आई है अगर यहाँ पे देखो तो। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल वही चीज है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ है, यहाँ पे भी गेट ऑफ ट्रायम्फ है, बिल्कुल यहाँ पे भी गेट बना हुआ है, यहाँ पे भी गेट है, और सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ही इज विशिंग लव एंड लॉट ऑफ वार्म विशेस फॉर हिज लवली पेट हु लव्ड हिम सेल्फलेसली। तो वो चीज विश कर रहे हैं। वो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो फज से काफी दूर निकल के आ गए हैं। ओके, he has come very far from fudge, he is very separated from fudge। यहाँ पे भी देखिए द वाइब्स जो है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का वाइब्स है पर उल्टा था, यानी कि ही वॉज मिसिंग फज। यहाँ पे भी देखिए काफी एक चीज जो द मीनिंग जो आ रहा है निकल के, ही इज मिसिंग, माने कि दूर, जैसे कि यहाँ पे ही इज इन द एंजेलिक रेल्म एंड ही इज सीइंग दैट फज इज हियर इन द अर्दी रेल्म, और ये दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस आ गया है। यहाँ पे भी वो मिस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो उल्टा में मिस कर रहे थे सेलिब्रेशंस में। तो सेम थिंग, सेम मैसेज रिपीट हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ Fudge is coming to terms with Sushant's death, that his master is not there anymore, जो कि उनको इतना प्यार करता था वो नहीं रहा है, वो बाहर अब इससे उभर रहा है, प्रॉब्लम्स शॉक से निकल रहा है। यहाँ पे भी देखिए सुशांत यही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे तुम निकल जाओगे, यू विल बी फाइन विदाउट मी, इवन दो वी आर नाउ सेपरेटेड, वी आर इन टू डिफरेंट रेल्म्स, आई एम इन द एंजेलिक रेल्म एंड यू आर इन द अर्दी रेल्म, हमारे बीच काफी डिस्टेंस हो गया है, लेकिन नेवरदलेस आई स्टिल मिस यू। ओके, और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी और लव विश कर रहे हैं अपने पेट के लिए, फज के लिए, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यस यू विल बी फाइन, गो स्लो, टेक टाइम, कोई इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू मिस मी, यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट मी, बट धीरे धीरे यू विल बी फाइन माय लवली चाइल्ड, डोंट डोंट बॉदर। ओके, यहाँ पे देखिए क्या आया है, वैलियंट करेज, टेक एक्शंस विथ पैशन, टेक एक्शन विथ पैशन। काफी करेजियस है वो जो है। यहाँ पे भी देखिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो करेज का बात आ गया है, और यहाँ पे एक स्नीकी बिहेवियर है। यानी कि यहाँ पे जब इन लोगों ने जब ये सारे लोग शायद सुशांत को अटैक करने आए हैं या कौन है ये लोग, तब ये पीछे मुड़ के ऐसा लग रहा है कि ये लोगों ने फज को ठिकाने लगाया है, या फिर उनको उसको दवा देके सुलाया है, या फिर दे आर जस्ट चेकिंग अप ऑन फज की उसके पेट को तुमने ठिकाने लगाया है कि नहीं, क्योंकि वो मामला को आके बिगाड़ सकता है। दे कैन बार्क, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन जस्ट बिकॉज दे कैन फील द वाइब्स, राइट? तो दे आर जस्ट चेकिंग अप ऑन Fudge that if this guy has been taken care or not। और यहाँ पे भी लगता है जैसे कि वो करेज दिखा रहा था, तो आई गेट अ वाइब्स कि फज को कुछ तो पता था, लगता है कि कुछ ऐसा स्नीकी सा हुआ है, पता था, और उसने करेज दिखाया है, एंड मे बी ही ट्राइड टू बार्क और रेजिस्ट, या कुछ ऐसा किया है उसने। टेक एक्शन विथ पैशन, उसने कुछ यहाँ पे डेफिनेटली किया है। यहाँ पे भी देखो एक बहुत ही करेजियस वे में कुछ अंदर जा रहा है यहाँ पे, राइट? ऐसा लगता है कि वार्न किया होगा उसने, फज ने, कि कोई आ रहा है, वार्न किया होगा।
और इन लोगों ने उस पर ध्यान दे के उसको बोला होगा हटाओ यहाँ से, समथिंग लाइक दैट. ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. अभी भी उसका काफी ग्राउंडेड, अभी भी फज सुशांत को काफी मिस करता है. एज यू कैन सी, फज कंप्लीटली भूला नहीं है सुशांत को. ही इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव अहेड. थोड़ा वो ओवरकम करने लगा है, भूलने लगा है. अभी भी उसकी एनर्जी काफी स्कैटर्ड रहती है और उसको अपने एनर्जी को शांत करने का जरूरत है. डेफिनेटली. लेट्स सी इफ देयर इज एनी ब्लेसिंग कमिंग फॉर Fudge from SSR. Dear angels, please tell us if there is any blessings coming from Sushant for Fudge, his lovely Fudge. Please tell us anything that is coming from Sushant. Awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. It's like he is telling that he is always going to be with him. Awakening presence. Even with ऐसा तो डेफिनेटली बोलते हैं कि जानवर जो भी होता है उसमें सेंसेस काफ़ी, दे आर वेरी सेंसिटिव. यू नो, दे कैन हियर वाइब्स, फील द वाइब्स मोर. और यहाँ पे भी सुशांत फज के लिए यही मैसेज लाया है, अवेकनिंग प्रेजेंस, कि वो हमेशा उसके साथ है. ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग. द यूनिवर्स इज विथ यू. वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज टेलिंग कि ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हिज लवली डियर फज, और उसको कोई नुकसान कभी नहीं कोई पहुंचा पाएगा. और यहाँ से वो ऊपर से उसको वॉच कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको सारा लव दे रहे हैं. एनी गाइडेंस. Supreme protection. Oh my God, he is feeling so protective about Fudge. यहाँ पे भी protection है, यहाँ पे presence है. So he is telling that he will always protect his Fudge, his lovely pet, through his protection, through his presence. Maybe वो Fudge देख नहीं पाए, पर शायद वो उसको feel कर सकता होगा, ऐसा लग रहा है. और he is telling that he will always be there for his Fudge to protect him. यहाँ पे भी देखिए protection है. वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव. हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, लव उसको मिलता रहेगा. यहाँ पे भी देखिए प्रोटेक्शन है. तो यू आर प्रोटेक्टेड. Cords are being cut. Move beyond limitation, trust. Cords are being cut, guys. Cords are being cut. This is beautiful. You are protected. Cords are being cut. और ये वाला कार्ड देखिए सेकंड कार्ड है. और यहाँ पे देखिए ये जो जितना तीनों कार्ड्स आया है, इट इज ऑल अबाउट मूविंग अवे. मैंने आपको ये क्या एक्सप्लेन किया था कि फज जो था काफी, ही वॉज फीलिंग द पेन ऑफ हिज मास्टर गोइंग अवे. काफी पेन में था, अभी ही वो पेन से उभरना स्टार्ट किया है. He has slowly and steadily started moving and forgetting, or probably not forgetting, but coming to terms with the fact कि अब सुशांत नहीं है, उनका मास्टर अब नहीं है जो उनको बहुत प्यार करता था. अभी धीरे धीरे वो समझना स्टार्ट किया है और शायद अपने आप को संभालना स्टार्ट किया है. यहाँ पे भी सेकंड नंबर कार्ड देखो, यहाँ पे भी वही है कि आप डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हो. धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लियो कि आपका मास्टर नहीं है जो कि आपको बहुत प्यार करता था. और यहाँ पे भी देखिए सेकेंड कार्ड जो मैंने पुल किया है, ये दोनों कार्ड प्रोटेक्शन का है. तो वो यही बोल रहे हैं कि वो दूर से भी, जैसे कि यहाँ पे देखो वो एंजेलिक रेल्म में है लेकिन उसको मिस कर रहे हैं, यानी कि वो एंजेलिक रेल्म से वो उसको देख रहे हैं. यहाँ पे भी देखो गेट्स ऑफ ट्रायम्फ है, ऊपर से एंजेलिक रेल्म से उसको देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में, बट स्टिल ही इज सीइंग हिम. यहाँ पे भी ही इज सीइंग हिम. और यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पे भी वो देख रहे हैं. यानी कि फर्स्ट कार्ड जितना भी है वो प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है कि सुशांत इज वॉचिंग हिज लवली पेट. प्रेजेंस, तीनों कार्ड वही चीज है. और सेकेंड कार्ड में है ही इज सीइंग हिज पेट मूविंग अवे फ्रॉम द पेन ऑफ लूजिंग हिज मास्टर.
यहाँ पे भी अवे जा रहा है, यहाँ पे भी अवे जा रहा है, और यहाँ पे क्या मैसेज है, गो स्लो टेक टाइम। उनको पता है कि उनका जो पेट है, सब कोई भूल जाएंगे, लेकिन उनका जो पेट है, जो कि एनिमल का लव, मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत सेल्फलेस लव होता है, वो धीरे धीरे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज टेलिंग कि तुम चिंता मत करो, योर पेन विल गो, इट विल बी फाइन, इट विल टेक टाइम, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा करके वो अपने पेट को, फज को बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, गो स्लो टेक टाइम, इट इज ओके, गो स्लो टेक टाइम, इट इज ओके, यू विल फॉरगेट, योर पेन विल हील, यू विल बी फाइन। और यहाँ पे थर्ड कार्ड जो है, सेकेंड रो का जो थर्ड कार्ड है, उसमें क्या बोला है, कॉर्ड कट कर रहे हैं, यानी कि वो कॉर्ड कट कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे फज उनको भूलने लगेगा, या फिर उसका पेन कम हो जाएगा, इस तरह से, बिकॉज ही इज कटिंग द कॉर्ड एंड येट ही इज देयर फ्रॉम द एंजेलिक रेल्म प्रोटेक्टिंग हिज किड बोल सकते हैं, ओके, बट ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट फज। यहाँ पे भी प्रेजेंस में प्रोटेक्शन आया है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन आया है, इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट फज। तो ये तो हमने देखा कि सुशांत का क्या मैसेज था उनके फज के लिए, और अब हम चेक करेंगे कि फज कैसा फील कर रहा है सुशांत के लिए, ओके। तो हमें यहाँ पे बताया है सुशांत ने कि ही इज मिसिंग हिज फज अ लॉट, बट फज विल बी ओके, ही इज ट्राइंग टू फॉरगेट हिम, ही इज ओवरकमिंग द पेन एंड स्लोली ही विल बी फाइन, एंड दैट ही इज अ वेरी करेजियस lovely pet. That is what he told. Okay, so let's ask our angels what Fudge is feeling about Sushant. Okay, how the lovely pet Fudge is feeling, thinking about Sushant. What is going on in his mind? Anything that you want to tell us, your angels? We'll love to hear, and we thank you so much for your guidance. How is Fudge feeling about Sushant? Thank you so much for the guidance. Oh, he is missing him. He's trying to balance, but is not able to balance. He keeps remembering him. He's carrying the baggage of the past. He's not able to forget. अगर आप पहले वाला रीडिंग देखो, जब हमने सुशांत का चेक किया था फीलिंग्स, तो यहाँ पे सेकेंड वाले कार्ड में ही आया था, इट्स ओके, डोंट वरी। यहाँ पे देखो सेम चीज है, द फज इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम हिज पास्ट, पहले से पास्ट से बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी भी वो पहले का बैगेज, उनकी मेमोरीज, उनका थॉट्स, उनका लव कैरी कर रहा है, which is just making it difficult for Fudge to forget it. ठीक है, और सेकेंड वाला कार्ड आप यहाँ पे रखो, जो यहाँ पे तीनों कार्ड्स आए थे, वहां पे क्या आया था कि इट्स ओके, गो स्लो, आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो, बट इट्स ओके, गो स्लो, धीरे धीरे तुम मुझे भूल जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज आया है, ये दूर जा रहा है यहाँ से, सुशांत के मेमोरीज से अपने आप को दूर करने का कोशिश कर रहा है, पर उनकी मेमोरीज इतनी ज्यादा है कि वो बिल्कुल भूल नहीं पा रहा है, और उसके वेट के नीचे दब गया है। और यहाँ पे ही सुशांत ने बोला था कि डोंट वरी, तुम धीरे जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा मेरा मेमोरीज है, तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो, बट इट्स ओके लवली बेबी, गो स्लो, यू विल बी फाइन, तुम भूल जाओगे मुझे, योर पेन विल हील। हील नहीं कर पा रहा है फज, वो कोशिश कर रहा है बैलेंस करने का, अपने पहले वाले लाइफ को और अभी वाले लाइफ को, पहले वाले मास्टर को और अभी वाले मास्टर को, पर वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो काफी उनके मेमोरीज में फील करता है, अभी भी हर्ट करता है, फील करता है वो। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल नो। देखिए काफी डरा हुआ है फज, डरा हुआ है, काफी डरा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ देखा है। मैंने जो एक्सप्लेन किया ना आपको, सेवन वाले सॉर्ड का जो लास्ट वाला कार्ड था, जहां पे करेज भी कार्ड आया था, कि उसने काफी करेज दिखाया था। मुझे लगता है कि फज को कुछ पता तो डेफिनेटली चला था, ओके, और वो काफी डरा हुआ भी है, सुशांत के लिए डर रहा है, ओके, काफी डरा हुआ है सुशांत को लेके। पता नहीं, पता तो शायद चल ही गया होगा उसको कि क्या हुआ है, बट वो सारे चीज से काफी डर गया है।
काफी काफी डर गया है अपने, क्योंकि यहाँ पे भी आप याद रखो कि उसको कुछ हुआ होगा, या तो उसको कुछ खिलाया होगा उन्होंने, या फिर जबरदस्ती कहीं लेके गए होंगे। वो सारी चीज़ें उसके जहन में होगी फज के, क्योंकि इनका मेमोरीज बहुत शार्प होता है, सेंसेस बहुत शार्प होता है। अगर आप उसको दूर भी रख दो तो सेंस से पकड़ लेंगे वो कि कुछ गड़बड़ है। यू रिमेम्बर हाउ डॉग स्टार्ट बार्किंग व्हेन हल्का सा भी नॉइज आता है, या फिर कोई बाहर के लोग आते हैं घर में, तो कैसे वो बार्क करने लगते हैं। तो आपको कैसे नहीं पता चलेगा आपके मास्टर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो वही चीज़ है, उसको वो बार बार चीज़ हॉन्ट करती है। वो बार बार पीछे देख रहा है और वो दिन याद कर रहा है। हॉन्टेड है वो डर गया है। वो भूल ही नहीं पा रहा है, और वो उस दिन जो हुआ था उसको भी वो भूल नहीं पा रहा है। उस दिन को याद कर करके वो बिल्कुल डर गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किसी को देखा है उसने, ऐसा लगता है, यही लगता है। तो हाउ इज, ओ वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल नो। हाउ इज फज फीलिंग अबाउट सुशांत? तो फज को पता है कि वो एंजेलिक रेल्म में चले गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये गार्डन है आपका, ये हेवन का गार्डन है। इट इज नॉट एस ऑफ वॉन्स और एस ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ कप नहीं है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स में एक जो ब्यूटीफुल गार्डन है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब वो वाले कार्ड से रिलेट करो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना। This is the same thing, man. I would just want to show you that card again because this is absolutely gorgeous. Give me a little time, guys. I'm just going to pull that card again, जो मैंने आपको explain किया है ना अभी, क्योंकि ये बता रहा है कि ये दोनों ना एक they are bonded. ये फज और सुशांत, they share a special bonding. यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था ना, देखो ये कार्ड कैसे सिमिलर है। अब ये फज सोच रहा है सुशांत के बारे में, बैलेंस कर पा नहीं रहा है अपने लाइफ को, काफी उनकी मेमोरीज में बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा है, पर वो काफी दूर तक आ रहा है। ठीक है, काफी दूर आ रहा है। और यही वाला बात सुशांत ने सेकेंड वाले रो में कार्ड में बोली है कि तुम चिंता मत करो, यू विल बी एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, तुम यू विल मैनेज, डोंट वरी, योर पेन विल हील। यहाँ पे यही चीज बोला है, यहाँ पे सेम ये चीज आया है। अब थर्ड वाले कार्ड में देखिए, यहाँ से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ये फज सुशांत के बारे में सोच रहा है कि तुम्हारी न्यू बिगिनिंग हो गई है, तुम एंजेलिक रेल्म में चले गए हो, यहाँ पे एंजेलिक रेल्म में आ गए हो। और यहाँ पे देखिए, सुशांत यहाँ से ही उसको देख रहे थे। डू यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज? सुशांत यहाँ से अपने फज को यहाँ पे देख रहे थे, और फज यहाँ पे है और सुशांत को यहाँ पे देख रहा है। देयर इज अ connection between them, there is a energetic connection, they can feel each other's vibes, and that is why आया है कि they protect, protective, very protective. सुशांत is very protective about फज, और ये बिल्कुल सेम चीज आया है। देखो यहाँ पे भी यही रास्ता है, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी सन का रेज है, यहाँ पे भी सन का रेज है। यानी कि ये फज और सुशांत जो है बिल्कुल एक कनेक्शन है, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, वाओ। तो बिल्कुल लगता है जैसे कि वो एक दूसरे के दिल की बात समझते हैं। Fudge definitely knows that Sushant is not there anymore, and he can see it and feel him in the angelic realm, and sending his positive vibes and unconditional love and protection from the angelic realm. He can absolutely see it, the sun shining on him here on this garden. Let's see how Fudge is feeling about Sushant. A breakthrough is at hand, breaking the trail. He finds it's very difficult to live. यहाँ पे वाला कार्ड है, he's finding it very difficult to live without his master who used to love him so much. But उसको ऐसा भी लगता है कि okay fine, I'll manage. But yes, he is finding it very difficult to live without Sushant. एक काफी struggle है to manage his life without Sushant. Begin now. Take your first step. यहाँ पे भी रास्ता है. It's almost like
सुशांत को कुछ स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। क्या स्टार्ट करने के लिए फज बोल रहा है उनको? बिगिन नाउ, बिगिन नाउ। वंडरस यूनिवर्स, वाओ। मैंने बोला ना आपको कि वो सुशांत को देख रहा है एंजेलिक रेल्म में। फज को पता है कि सुशांत इज नॉट देयर, ही नोज इट, और इसी से वो काफी डरा हुआ भी है। वो उस दिन को याद करता है, कुछ सस्पिशियस हुआ है उस दिन। उस फज को काफी कुछ पता है, उसको पता है कि कुछ उस दिन हुआ है उसके मास्टर के साथ। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों कार्ड कंपेयर करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है इस कार्ड में और उस कार्ड में। फज देख रहा है सुशांत को यहाँ पे एंजेलिक रेल्म में। देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन बोथ, और वंडरस यूनिवर्स में है वो। यहाँ पे भी देखिए पूरा वंडरस यूनिवर्स ब्यूटीफुली आ गया है। कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड, आप यू जस्ट हैव टू सी दिस। दिस इज मैजिकल, वंडरस यूनिवर्स है यहाँ पे भी। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि फज, दिस इज द फज फीलिंग फॉर सुशांत। तो वो फज को पता है कि वो एक वंडरस यूनिवर्स में चले गए हैं। ही इज नॉट इन दिस बेरहम दुनिया एनी मोर, जहाँ पे उनके साथ इतना ब्रूटैलिटी हुआ है। उसको पता है कि वो एक, फज को पता है कि सुशांत एक अच्छे से दुनिया में चले गए हैं, जहाँ पे मैजिक है, ब्यूटी है, लव है, पीस है, केयर है। ओके, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तुम अब आगे बढ़ो। You know, Fudge is telling, because see, there is magic all around. You don't know, we don't know, we only know what we know, and we don't know what we don't know. तो यहाँ पे Fudge बोल रहा है सुशांत से कि तुम अब आगे बढ़ो, take your first step, you know, just move on in your soul journey ahead. And this is very beautiful कि सुशांत भी Fudge को यही बोल रहे हैं कि तुम, इट्स ओके, यू विल बी एबल टू हील। आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। बहुत तुरंत भूल नहीं पाते हो तो थोड़ा सा बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ो। बच्चे मुझे तुम भूल जाओगे। और यहाँ पे फज भी उनको यही बोल रहा है कि आप भी एंजेलिक रेल्म से अब माने कि आप भी अपना सोल जर्नी आगे बढ़ाओ। इट्स ओके, यू डोंट बॉदर अबाउट मी, आई एम फाइन हियर, ऐसा करके वो बोल रहा है, इट्स फाइन। और यहाँ पे देखो बोल रहा है फज कि आई नो यू आर हियर, I know you are here, you are shining your light from your angelic realm on me, and you are in this beautiful wondrous world where you are walking in beauty. यहाँ पे जैसा आपके साथ हुआ था, you are in a beautiful soul and you are in a beautiful place, and wow, this is gorgeous, guys. This is absolutely beautiful. Back of the deck card, open your heart to joy, यानी कि यस, फज मिस करता है उनको, जिस तरह से बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे उल्टा आया था ना, जैसे कि सुशांत एंजेलिक रेल्म में फज को मिस करते हैं। फज यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है फज को अपना, यू नो, टू लिव विदाउट हिज मास्टर, बट यस, he is carrying the memory of Sushant, but he also knows that Sushant is in an angelic realm where he is you know, walking in beauty. Open your heart to joy. वहां पे joy है, love है, bliss है, beauty है, सब चीज है वहां पे। And Fudge is happy with Sushant being there. तो फज उनको, सुशांत को मिस करता है। वो उस दिन को याद करके बहुत डर गया है, कीप्स रिमेम्बरिंग दैट डे। काफी डिफिकल्ट है मेमोरीज के लेके आगे बढ़ना, बट ही इज फाइन विद द फैक्ट दैट सुशांत जहां पे है अभी, ही इज फाइन विद दैट। उसको पता है कि सुशांत एक अच्छे जगह पे चला गया है जहां से ही इज शाइनिंग हिज लाइट ऑन मी, एंड ही ओनली वांट्स सुशांत सोल टू कीप ऑन मूविंग। क्योंकि आप याद रखो, सुशांत ने क्या बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, दूर से भी मैं तुमको देख रहा हूँ, मेरा प्रेजेंस तुम्हारे साथ है, प्रोटेक्शन है तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ पे फज क्या बोल रहा है, टेक योर फर्स्ट स्टेप, कीप योर सोल जर्नी मूविंग अहेड। तो वो जो बोलते हैं ना कि एक अटैचमेंट रह जाता है, जो इस तरह के से किसी का डेथ होता है या कुछ इस तरह का होता है, तो उसका एक, वो इस वर्ल्ड से जाने के बाद भी उनका कुछ अटैचमेंट रह जाता है। तो यहाँ पे इस सारे कार्ड्स में काफी अच्छे से अटैचमेंट उनका दिखता है, एक सेल्फलेस लव जो एक पेट कर सकता है, एक एनिमल का होता है उसके मास्टर के लिए, और इसीलिए इतना सेल्फलेस लव सुशांत का भी अपने पेट के लिए दिख रहा है, पेट का भी, फज का भी सुशांत के लिए दिख रहा है। ओके, तो
ये जो चीज है ना कि वो उनकी बातें हो रही है कि हाँ तुम अपना लाइट शाइन कर रहे हो मेरे पे, एंड आई कैन ऑल्सो फील योर वार्मथ, बट आई नो दैट यू आर इन अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू बी देयर, यू डिजर्व ऑल द लव, यू डिजर्व ऑल द डिलाइट, यू ऑल डिजर्व ऑल द जॉय, बट कीप ऑन मूविंग, कीप योर सोल्स जर्नी मूविंग, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट, जैसा कि सुशांत ने बोला कि मैं तुम पे हमेशा आई विल बी देयर विथ यू, प्रेजेंस रहेगा मेरा, प्रोटेक्शन रहेगा, तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो मेरा, आई एम गोना बी फाइन, यस मैं तुमको भूल नहीं पा रहा हूँ बट आई एम गोना बी फाइन, आई विल टेक टाइम बट आई विल heal my pain, you keep on moving, don't bother about me. Wow, what a guidance, beautiful, 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 absolutely gorgeous. So this is the guidance, guys. I always wanted to do one guidance on fudge. I don't know, I always used to forget, but wow, I was so drawn to do this guidance today, and what a magical reading indeed. Do let me know what you feel about the guidance, guys. I always love hearing from you. Thank you so much for watching and liking and subscribing. Appreciate your love. God bless, and I will see you again with another guidance. Take care. Bye for now.